Good morning, students. Today I am going to teach you English literature, chapter 3, The Little Girl. Okay, छोटी लड़की. Do you know your parents better now than when you were much younger? Okay, students, क्या आप अपने माता पिता को पहले की अपेक्षा अब अच्छा जानते हो? क्योंकि अभी आप थोड़े से बड़े हो गए हो, पहले छोटे थे. Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद तुम समझते होगे क्या अपने माता पिता के जो पहले तुमको डांटते थे या तुम्हारे खिलाफ जो एक्शन लेते थे उनसे तुम लोग अपसेट हो जाते थे, है ना? तो क्या तुम रीजनों को जानते हो, है ना? दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर. ये कहानी एक छोटी लड़की के बारे में है, छोटी लड़की के फीलिंग्स के बारे में है जो कि अपने पिता से बहुत डरती है, लेकिन बाद में वो इतनी इको फ्रेंडली हो जाती है कि वो जो है अपने पिता से नहीं डरती है और नॉर्मल अपने और बच्चों की तरह रहती है. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड. एवरी मॉर्निंग before going to work he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father, and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. In the evening when he came home she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet, mother? Go and see if my paper's out there and bring me my slippers. Okay. Kezia, mother would call to her. If you are a good girl, you can come down and take off father's boot. Slowly the girl would slip down the stairs and more slowly still across the hall and pushed open the drawing room door. By that time he had the spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and them outside. Have you been a good girl today? I don't know, father. You didn't know? If you shudder like that, mother will have to take you to the doctor. She never stirred with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying too hard to say word probably. What's the matter? What are you looking so rest about, mother? I wish you taught this child not to appear on the brink of side. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. He was so big, his hand and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about his alone was like thinking about a giant. ओके, यानी केजिया स्टोरी में एक छोटी सी लड़की होती है और अपने पिता के बारे में उसकी छवि अच्छी नहीं होती, यानी अपने पिता से बहुत डरती है, बहुत ज़्यादा डरती है. और वह अपने पिता से जैसे ही आते हैं उनकी आकृति से बहुत डरती है. काम पर जाने से पहले वह उसके पास आते हैं और लाड़ दुलार करते हैं, परंतु जब भी वह जाते हैं तो केजिया को काफ़ी आराम महसूस होता है. घर से बाहर जाते हैं तो केजिया को अच्छा लगता है और घर में आते हैं तो केजिया अच्छा फील नहीं करती है. शाम को केजिया के पिता के सामने कैसे आती है? शाम को केजिया के पिता घर आते हैं, केजिया उनके लिए चाय, केजिया के पिता कहते हैं चाय के लिए बोलते हैं तो उनके लिए चाय लाती है और ऊंची आवाज़ में सुनती है. केजिया उसकी चाय के लिए ऊंची आवाज़ सुनती है. केजिया की माँ केजिया को
अपने पिता के जूते उतारने के लिए अच्छी लड़की बनने के लिए कहती है। जब वह जूते उतारती है जब वह जूते उतारती है तो पिता उनसे पूछते हैं क्या उस दिन वह अच्छी लड़की रही, परंतु वह उससे भयभीत होती है, अच्छे से बोल नहीं पाती है, बोलती नहीं है। ओके, भय के कारण वो तुतला कर बोलती है। वास्तव में बोलने की कोशिश करती है, परंतु भय के कारण वो हिचकिचाती है और पिता की छवि उसके मन में अच्छी नहीं होती। केजिया के लिए उसका पिता एक तरह से दानव की तरह वो समझती है अपने पिता को, ठीक है, बहुत डरती है पिता से। नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. She sat on a stool. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little girl owl. One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. Okay, laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was a question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps on the bed table. She discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. Okay. यानी एक संडे यानी एक इतवार की दोपहर के बाद दादी ने केजिया को माता व पिता के साथ बातचीत करने के लिए कहा। ओके, परंतु केजिया ने हमेशा माँ को पढ़ते और पिता को खर्राटे भरते हुए पाया, इसलिए उसने पिता के लिए प्रतीक्षा की। वह पिता की तरफ घूरती रही, देखती रही, जब तक वह नहीं जागे प्रतीक्षा करती रही, और वह वास्तव में जागा तो उसने घूर करके न देखने के लिए कहा, और वो कहने लगा कि तुम उल्लू की तरह दिखती हो। किसकी तरह दिखती हो? यानी केजिया से कहने लगा कि वो जो है एक उल्लू की तरह दिखती है। ओके, केजिया के पिता के लिए जन्मदिन का उपहार बनाती है। एक दिन केजिया की दादी ने उसे बताया कि उसके पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह था। उसने केजिया को सुझाव दिया कि वह उसके लिए पीली सिल्क का एक पिन कुशन बनाए। ओके, एक पिन कुशन बनाए। इसलिए केजिया ने पिता के लिए पिन कुशन बनाया और उसे पिन कुशन में भरने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, इसलिए उसने पतले कागज़ की कुछ सीटें ली और उन्हें उसमें भर दिया। ये सीटें उसके पिता की थीं। इनमें एक महत्वपूर्ण भाषण था जो उन्हें कहीं देना था। ओके, that night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were stretched. Rooms were searched. Servants questioned. Finally, mother came into the Kejia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on the table in our room? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. And she was dashed down to where
Father was packing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do what? Did you do what? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damning thing. See that the child's put the bed this instant. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hand. I am going to beat you for this, he said. Oh no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. ओके यानी उस रात जो है घर में बहुत बर्थडे पार्टी थी, तो बहुत शोर शराबा हो रहा था। केजिया के पिता का जो पोर्ट अथॉरिटी का महान भाषण था, यानी जिन कागज़ों में उन्होंने भाषण को लिख रखा था, वो केजिया ने फाड़ के कुशन में भर दिए थे। ओके, तो इसी पे उसके पापा नाराज़ हो गए और उसको ढूंढते हुए कमरे में गए, कमरे में ढूंढने लगे। नौकरों से पूछताछ की गई। पिता केजिया के कमरे में गए और उससे भी पूछताछ की गई। केजिया ने झूठ नहीं बोला। उसने उसे बताया कि उसने उन कागज़ों को फाड़कर कुशन में भर दिया है। पिता केजिया को बुलाता है और उसे पीटते हैं। ओके, पिता ने केजिया को ड्राइंग रूम में आने के लिए कहा। वह बहुत गुस्से में था और इधर उधर घूम रहा था। केजिया काफ़ी भयभीत थी। उसने केजिया से पूछा, क्या उसने वह किया है? क्या उसने कागज़ों को लिया है, फाड़ा है? वह हल्की आवाज़ में बोली। पिता ने माँ को केजिया के कमरे में जाने के लिए फटे हुए कागज़ों को लाने के लिए कहा था। इस बीच उसने केजिया को हाथ आगे करने के लिए कहा। उसने उसके हाथों पर पिटाई की। उसने वैसा उसे यह सिखाने के लिए किया कि वह जो चीज़ उसकी नहीं है उसको ना छुए, उसको ना टच करे। ओके, यानी केजिया के पिता ने कहा, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, यानी जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको टच ना करो। ठीक है, बट इट वाज फॉर योर बर्थडे। Down came the ruler on her little pink palms. Hours later, when grandmother had wrapped in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make father for? She sobbed. Here a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forget. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back, and a red color flew into her cheeks. ओके, अब केजिया ने देखिए, केजिया की पिटाई हो गई, केजिया से गलती हो गई थी तो केजिया की पिटाई हो गई स्टूडेंट्स। अब केजिया क्या करती है? केजिया ने यह सुना, उसने उत्तर दिया, जो कुछ उसने किया वह किया है, उससे गलती हुई है। वह अपने पिता के जन्मदिन के लिए बना रही थी। ठीक है, केजिया की उसके हाथों पर पिटाई की गई। घंटों पश्चात उसकी दादी आई। दादी ने उसे, ठंड का समय था, दादी ने उसे शॉल में लपेट लिया और वह उसके साथ मतलब गोद में
चिपटा लिया उसे और लाड़ दुलार करने लगी। जब उसे रॉकिंग कुर्सी में झुलाया जा रहा था उसने सिसकी ली और परमात्मा से कहने लगी केजिया कि परमात्मा ने पिताओं को क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, पिता को क्यों बनाया है, किस लिए बनाया गया है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। दे हैड 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby on his shoulders, 2 little girls hanging on it to his coat pocket, run round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the house on him and tried to catch them laughing all the time. Then it was she decided there were different sorts of fathers. यानी केजिया की पड़ोस में एक मैकडोनल्ड रहते थे, एक पड़ोसी थे केजिया के घर के सामने जो है, और उनके 5 बच्चे थे। पिता उन बच्चों के साथ खेला करते थे, यानी उनके पिता बहुत सॉफ्ट नेचर के थे, यानी हंसमुख थे, बच्चों के साथ मिल जाया करते थे। तो केजिया उनको देख रही है कि देखिए मैकडोनल्ड जो है कितने अच्छे हैं, जो कि अपने बच्चों से इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। और केजिया ने सोचा कि पिता भी डिफरेंट काइंड के होते हैं क्या, पिता भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ पिता ऐसे होते हैं कि पिटाई करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि हंस के बच्चों के साथ खेलते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पैरा। सडनली वंस डे द मदर बिकम इल and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice the cook that was all right in the daytime. Okay, but while Alice was putting her to bed she grew suddenly afraid. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark, it all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. Okay? यानी अचानक क्या होता है कि केजिया की जो माँ होती हैं और दादी होती हैं, देखिए अचानक क्या होता है कि केजिया की जो माँ होती हैं और जो दादी होती हैं वो बीमार पड़ जाती हैं और हॉस्पिटल चली जाती हैं। ठीक है, अस्पताल में उनको एडमिट कराना पड़ता है। केजिया की दादी उसके साथ थी। ठीक है, केजिया एलिस रसोइया के साथ अकेली थी। ठीक है, और केजिया ने एलिस से पूछा यदि उसे एक भयानक स्वप्न आ जाए तो क्या होगा। यानी वो अकेली है, उसके साथ नहीं है उनकी मम्मी और दादी जो हैं, उसको भयानक स्वप्न आ जाए तो क्या होगा। परंतु एलिस ने उसे सोने के लिए कहा, उसने उसे न चिल्लाने न रोने के लिए कहा, और ये कहा कि वह अपने बेचारे पिता को न जगाने के लिए भी कहा कि अगर उसको डर लगता है तो पिता को ना जगाए, पिता को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। केजिया सो रही होती है, उसको एक डरावना सपना आता है। बट द सेम ओल्ड nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling a dreadful smile while she could not move, could not stand still, crying out, "The grandma, grandma!" She woke shivering to see father beside her room, a candle in his candle in his hand. "What's matter?" he said. Okay. "Oh, a butcher, a knife, I want Granny." He blew out the candle, bent down the cot up the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed.
He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still, with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snugged her head under his arm, held tightly to his shirt. ओके यानी केजिया ने एक भयानक स्वप्न देखा। उसने क्या देखा स्वप्न में कि एक जो है कसाई है, उसके हाथ में बहुत बड़ा सा चाकू है और रस्सी है, जो कि उसके पास आता जा रहा है, मुस्करा रहा है, उसके पास में आता जा रहा है और उसको केजिया बहुत डर रही है, कुछ भी ना हिल पा रही है ना कुछ कर पा रही है और वो चिल्ला रही है दादी दादी, और ऐसा कहते हुए कांपते हुए वो जग जाती है। ठीक है, तभी एकदम से उसके पापा हाथ में मोमबत्ती लेकर एकदम से आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, कैसे परेशान हो। ठीक है, और वो केजिया के पास आ जाते हैं। वो जो है देखिए केजिया को एक जो स्वप्न आता है, भयानक स्वप्न आता है, उसने कसाई को चाकू और रस्सी के साथ में देखा था। ठीक है, वह केजिया के पास आया परंतु केजिया हिल नहीं सकी, वह चिल्लाई जोर से, यानी वो डर गई सपने में और ज़ोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाने से उसके पिता जग गए और उसके मोमबत्ती हाथ में लेकर आए उसके रूम में और देखा कि वो जो है बहुत डरी हुई है, तो वो जो है केजिया को गोद में उठाया, अपने साथ में ले गए। ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? देन द डार्क डिड नॉट मैटर, she lay still. Here, rub your feet against my leg and get them warm, said father. Tried out the sleep before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big and all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writings. She stirred suddenly and sighed. What is the matter? Asked her father. Another dream? Oh, said the little girl. My head's on your heart, है ना? I can hear it going. When a big heart you have got, father dear. ठीक है, यानी केजिया जो है देखती है कि उसके पिता इतने सख्त हैं, जब उसको डर लगता है, भयानक सपना देखती है तो क्या देखती है, उसके पिता एकदम से दयावान भी हैं, कि उसके पिता को एकदम से दया आती है और एकदम से हाथ में कैंडल लेके आते हैं और उसे गोद में उठा ले जाते हैं। तो केजिया की अपने पिता के बारे में जो गलत छवि थी, जो गलत राय थी, एकदम से चेंज हो जाती है, एकदम से बदल जाती है। और वो देखती है कि केजिया ठंड से कपकपा रही होती है, छोटी सी बच्ची होती है, तो वो कहते हैं केजिया को अपने पास सुला लेते हैं और उसके हाथों को सहलाते हैं, पैरों को सहलाते हैं, और ताकि वो गर्माहट महसूस कर सके। केजिया को एक अद्भुत चीज़ का अनुभव हुआ। उसने सोचा कि उसके पिता दादी से अधिक सख्त हैं, यानी दादी सख्त हैं लेकिन उसके पिता दादी से भी ज़्यादा सख्त हैं, क्योंकि वो मतलब मैन होते हैं ना, आदमी होते हैं ना, इसलिए। परंतु यह एक अच्छा सख्तपन था, क्योंकि उस वक्त केजिया अपने पिता को अच्छा समझ रही थी। केजिया को जो डर लग रहा था सपने से मुक्त हो गई थी, और हकीकत में उसके पिता उसको डांट नहीं रहे थे, बल्कि जो डरावना सपना देखा था उससे वो मुक्त हो रही थी। ठीक है, हर एक दिन उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह मिस्टर मैकडोनाल्ड बनने के लिए काफ़ी थक जाता था और उसने उसका लेग फाड़ डाला। वह हिली। पिता ने उससे पूछा क्या बात है। केजिया ने बताया कि उसका सिर उसके दिल के एकदम ऊपर था। उसने उसे बताया कि उसका दिल, यानी उसका जो दिल है का बहुत बड़ा है, जो कि वो धड़क रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है केजिया जो पहले इतनी चैप्टर की शुरुआत में बताया है कि इतनी डरी डरी सी है, बहुत डरती है, अपने पिता को एकदम से दानव राक्षस समझती है, लेकिन चैप्टर के अंत में आते आते केजिया अपने पिता को एक अच्छा इंसान मानने लगती है, क्योंकि वो उसके डर से, जब वो डर रही थी तो उसकी हेल्प करते हैं।
Okay, is that clear, students? That's it.